Hello everyone, I am Professor Deepthi Malviya from Department of Electronics and Communication Engineering, and the subject is Digital System. So what is a digital system? A digital system is a system that stores data in a discrete way. There are two types of information, analog or digital. We know analog information is made up of a continuous value into a given range, whereas a digital information can assume only two values. Two possible values are 1 or 0. We call it as binary numbers. This one is represented as a logic high, and a 0 can be represented as logic low. It can also be known as on or off mode, true or false. Analog versus digital. What is the need of digital system? Actually, digital information is very less susceptible to noise than an analog information. So, digital system is much reliable. The complexity of operation is reduced in digital system. Thus, it is easier to implement digital signal with high accuracy. Most quantities that are available are analog in nature, so a conversion is required. This can be done using converters. Analog to digital converter can be used to convert analog signal into digital. The first topic of the subject is number system. What is a number system? It is a system for representing numbers of a certain type. There may be several types, several number systems for representing the counting numbers, and these are decimal number system, binary number system, octal number system, and hexadecimal number system. A decimal number system, these four types of number system we are going to discuss here in digital systems. Okay, so what is a decimal number system? In decimal number system, there is a total 10 numbers are there. 10 numbers हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Total 10 numbers हैं. Therefore, the base of decimal number system is 10. And decimal number system हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम. Binary number system have two numbers, only two numbers are there, 0 and 1. That's why the base of the binary number system is 2. Third type of number system is octal. Octal का base है, base is 8. क्योंकि in octal number system there are only 8 numbers which start from 0 and goes up to 7. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These 8 are octal numbers. And last one is hexadecimal number system. Base of hexadecimal is 16 क्योंकि वहाँ पे टोटल 16 नंबर हैं. 0 से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम नंबर होता है F. तो 0 to 9, right? And after 9 counting start from A, B, C, D,
E and goes up to F. Counting of different number system through a table. ठीक है, तो ये एक टेबल है जिसमें आप डिफरेंट नंबर सिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं, किस नंबर सिस्टम का इक्विवेलेंट अदर सिस्टम में क्या होगा। ठीक है, तो डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल आर सिमिलर फ्रॉम 0 to 7 एंड बाइनरी। डेसिमल 0 is equivalent to 0000 in binary. Decimal 1 is equivalent to 0001 in binary. Similarly, decimal 7 is equivalent to 0111 in binary. And when decimal is 8, the octal number will count, the equivalent of decimal 8 will be 10 in octal number system. Number 8 is invalid in octal. In octal number system, only 0 to 7 can be available. In hexadecimal, after 9, when decimal is 9, octal will be 11 and hexadecimal will be 9. But when decimal is 10, its equivalent in hexadecimal will be A. Similarly, when decimal is 11, its equivalent in hexadecimal number system will be B. So in this way, all numbers are counting. So the important topic is conversion from one number system to another. First one is binary to octal number system. Binary to octal conversion. Group into three bits starting at least significant symbol. Write one octal digit for each groups. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी बाइनरी नंबर है, वी हैव टू मेक ग्रुप ऑफ थ्री बिट्स एंड वी विल स्टार्ट मेकिंग ग्रुप फ्रॉम राइट मोस्ट कॉर्नर, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है, दिस राइट मोस्ट वन इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट and the leftmost bit is called most significant bit in binary. So I have taken an example 1010101 in binary, and we need to convert this number into octal number system. So what we are going to do, we will start making group of three bits from rightmost corner, that is our LSB, least significant bit. ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 ग्रुप फॉर्म किए हैं. तो फर्स्ट ग्रुप है 001, सेकेंड है 010 एंड थर्ड है 101. सो यहाँ पे हम देखें हमारा आंसर क्या हो जाएगा. 001 का इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1. सिमिलरली 010 का इक्विवेलेंट हो गया 2 एंड 101 का इक्विवेलेंट हो गया 5. यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, मैंने बोला वी नीड टू मेक ग्रुप ऑफ 3 बिट्स. ठीक है, हमने 3 बिट के ग्रुप स्टार्ट किए फ्रॉम राइट मोस्ट कॉर्नर. बट इन केस अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप बच रहा है जिसमें टोटल 3 बिट्स नहीं हो पा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड में हम जितने ज़ीरो हमें कम पड़ रहे हैं उतने ज़ीरो हम ऐड कर देंगे. ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी बिट्स हैं, टोटल 7 बिट्स हैं, जबकि हमारे पास 3 ग्रुप बन रहे हैं तो टोटल 9 बिट्स होना चाहिए. तो हम इसको कैसे फुलफिल करेंगे, जो हमारा MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट लेफ्ट मोस्ट साइड की जो बिट है 1, उसके आगे हमने 2 ज़ीरो और ऐड कर दिए. किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरोज़ पहले ऐड करेंगे तो मीनिंग उसका नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा.
इसलिए वी विल ऐड zeros बिफोर दिस नंबर. नाउ 001 को हम का इक्विवेलेंट हम नोट कर लेंगे ऑक्टल में, दैट इज 1. सिमिलरली 010 का इक्विवेलेंट इज 2 एंड इक्विवेलेंट ऑफ 101 इन ऑक्टल इज 5. ये जो भी इक्विवेलेंट मैं चेक कर रही हूँ ये मैं कहाँ से नोट करूँगी, जो मैंने टेबल अभी डिस्कस करी थी प्रीवियस स्लाइड्स में. सो द आंसर इन ऑक्टल इज 125. नेक्स्ट इज ऑक्टल टू बाइनरी. ठीक है, अभी हमने क्या किया, बाइनरी से ऑक्टल में किया. तो जब हम बाइनरी से ऑक्टल में कर रहे थे तो हमें क्या करना था, हमारे पास 1010 के फॉर्म में क्वेश्चन था. हमने उसमें 3 ग्रुप किए, 3 बिट के ग्रुप किए. बट अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फॉर ईच ऑफ द ऑक्टल डिजिट वी विल राइट इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट. ठीक है, ऑक्टल का बाइनरी इक्विवेलेंट हमेशा 3 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो 257 ऑक्टल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे बाइनरी में. तो हर एक डिजिट को 2 का भी मैं 3 बिट में रिप्रेजेंट करूंगी, सिमिलरली 5 को मैं 3 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करूंगी एंड 7 को भी आई विल रिप्रेजेंट इन 3 बिट बाइनरी. सो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 010. 5 का होता है 101. सिमिलरली 7 इज 111. सो इसका कंप्लीट हमारा आंसर हमें मिल गया है बाइनरी फॉर्म में. तो इसको हम कंबाइन करके लिख लेंगे, 010, 101 एंड 111 इज आंसर इन बाइनरी फॉर्म. सो इट्स ऑल अबाउट ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन. नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. ठीक है, ऑक्टल और हेक्सा को हम कैसे कंपेयर करें, जब भी हमें ऑक्टल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो एवरी ऑक्टल डिजिट, ईच ऑक्टल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 बिट बाइनरी. बट अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट बाइनरी नंबर. ठीक है, तो अब हमें ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल के केस में हमने कितने बिट की ग्रुपिंग करी थी, 3 बिट की ग्रुपिंग करी थी. बट इन दिस केस when we need to convert binary number into hexadecimal, we will start making group of 4 bits and we will start making group from least significant position. ठीक है, least significant position हमारी राइट मोस्ट बिट्स होती हैं. सो ये हमारा जो क्वेश्चन था 1010 111 011 बाइनरी में वी हैव टू कन्वर्ट इन हेक्साडेसिमल. अब हमें क्या करना है, 4 बिट के ग्रुप बनाने हैं राइट मोस्ट कॉर्नर से. तो हमने 4 बिट के ग्रुप बनाए. ठीक है, इफ एनी नंबर ऑफ बिट इज नॉट इवनली डिविजिबल बाय 4, तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड जीरोज एट मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड. MSB एंड जो है इसके पहले हम 0 ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 ग्रुप्स वी हैव फाउंड. First is 010, second is 1011 and third is 1011. So 010 only 3 bits are there. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक 0 और पहले ऐड कर देंगे. तो हमारा कौन सा ग्रुप बन जाएगा, पहला वाला ग्रुप हो जाएगा 0010. ठीक है, तो 0010 हेक्साडेसिमल में बाइनरी है, उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में होता है 2 according to the table and 1011 is B, equivalent to B in hexadecimal. So the answer is 2BB in hexadecimal. Next is hexadecimal to binary conversion. अब हमें यहाँ पे फिर से वही करना है. हेक्साडेसिमल में नंबर दिया है, एवरी हेक्साडेसिमल, ईच हेक्साडेसिमल डिजिट को आई विल राइट इट्स इक्विवेलेंट 4 बिट नंबर, 4 बिट बाइनरी नंबर. ठीक है, तो 2 को हम लिखेंगे 2, 5, A और 0 को हम
हर एक डिजिट को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे. 2 is equivalent to 0010 in binary. Similarly, 5 is equivalent to 0101 and A is 1010 and 0 is 0000. So the complete answer, हम इन सबको कंबाइन करके नोट कर लेंगे तो कंबाइंड आंसर हमारा आ गया बाइनरी फॉर्म में. नेक्स्ट इज octal to hexa. 2 steps are there. Convert octal number. First step is convert octal number into binary number. ठीक है. Second step is convert this binary number into its hexadecimal equivalent. ठीक है. तो क्वेश्चन इज 635.27 in octal and we need to convert this number into hexadecimal. तो octal से हमें पहले hexadecimal करना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? octal टू बाइनरी करना है. तो octal और बाइनरी की जब बात आती है, octal और बाइनरी, तो octal को 3 बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में. ठीक है. तो 635, 6 को हम लिखेंगे 110, 3 को लिखेंगे 011. सिमिलरली 5 इज 101, 2 010 एंड 7 111. ठीक है. डेसिमल जहाँ पे था वहीं पे हमें नोट लगाना है. फ्रैक्शनल पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हम पॉइंट लगा दिए. ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें ये फ्रैक्शनल पार्ट को अभी हम सेपरेट करके देखें. तो फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दें. तो पॉइंट के पहले वाले जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप ग्रुप देख सकते हैं. ब्लू लाइन से 4 बिट की ग्रुपिंग हुई है. ठीक है. तो हम ग्रुपिंग अब स्टार्ट कैसे करेंगे? जो 5 था, 5 की वाली नीचे जो बिट्स थी, जो 101 था, तो हम 1 जो लास्ट वाला है वहाँ से हम 4 बिट के ग्रुप बना रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पहला ग्रुप जो था उसमें सिंगल 1 रह गया था. तो हम आगे क्या करेंगे? 2 0 ऐड कर देंगे. तो हमारा पहला ग्रुप क्या हो जाएगा? 001. दैट इज इक्विवेलेंट टू 1. सिमिलरली सेकेंड ग्रुप इज 1001. दैट इज इक्विवेलेंट टू 9. ठीक है. नेक्स्ट है 1101. 1101 क्या होता है? डी. तो हमने लिख लिया डी. ठीक है. अब हम वापस से, क्योंकि हमारा उस पॉइंट पे डी के बाद हमारा क्या आना चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो डेसिमल आना चाहिए. डेसिमल मैंने लगाया. इसके बाद अब हम क्या करेंगे? डेसिमल के पहले तक हम राइट वाले साइड से लेते हैं ग्रुपिंग, बट डेसिमल के बाद जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो लेफ्ट साइड से हम ग्रुपिंग करेंगे. ठीक है. तो 010 जो था हमारा 010 वाला केस, तो हम यहाँ पे आप देख लीजिए. ठीक है. हम यहाँ से ग्रुपिंग अब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं. तो पहला ग्रुप अब मेरा क्या हो जाएगा? डेसिमल के बाद 0101. दैट इज इक्विवेलेंट टू 5. नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है उसमें हमें क्या मिल रहा है? 11 मिल रहा है. ठीक है. जब हम डेसिमल के बाद वाले केस में बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट में बात करें, तो जब ऐसा कुछ हो रहा है कि बिट कम पड़ रही है, तो अब हम इस केस में क्या करेंगे? 11 के बाद 2 0 ऐड कर देंगे. तो हमारा नंबर 4 बिट में बन गया 1100. तो 1100 इज इक्विवेलेंट टू C. सो द कंबाइंड आंसर इज 190.5C. अगेन अभी हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल देखा है. अब है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल. दोनों सिमिलर ही हैं. जब भी इस तरह इन दोनों में आपस में कन्वर्जन करना है तो हमें पहले क्या करना होगा? पहली स्टेप में बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा. तो यहाँ पे भी हमने वही किया है. हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्ट करना था. तो फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी. तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल राइट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट. नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट बाइनरी नंबर
into its octal equivalent. Next is hexadecimal to octal. एक एग्जाम्पल है हमारे पास 1AC इन हेक्साडेसिमल. अब हमें फिर से वही करना है. हेक्साडेसिमल को हमें पहले क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो हमने कैसे कन्वर्ट किया, हर एक डिजिट को 4-4 बिट के बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, ये है हमारा 1AC जो है ये हेक्साडेसिमल था, हमने 4-4 बिट से रिप्रेजेंट किया. तो 1 क्या हो गया 0001, A इज़ 1010, सिमिलरली C इज़ 1100. ठीक है, इसको कंबाइन करके लिख लिया तो हमारा बाइनरी फॉर्म में आ गया है नंबर. बाइनरी फॉर्म में कंप्लीट क्या मिला 0001 1010 1101. ठीक है, अब हमें बाइनरी में आ गया है. अब बाइनरी से ऑक्टल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं 3-3 बिट के. तो हम यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट तो है नहीं, है ना. तो अब हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट मेकिंग ग्रुप फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो कितने ग्रुप फॉर्म हो गए हमारे, 4 ग्रुप फॉर्म हो गए. ठीक है, तो 000 इज इक्विवेलेंट टू 0 इन हेक्साडेसिमल, सॉरी इन ऑक्टल. Similarly 110 is equivalent to 6, 101 is 5 and 100 is 4. So complete octal number is 0654. Next type of conversion is, हम कहते हैं कि किसी भी टाइप का बेस है हमारे पास, कोई भी बेस है, बेस हमारा बाइनरी हो सकता है, बेस हमारा ऑक्टल हो सकता है, बेस हमारा हेक्साडेसिमल हो सकता है. ठीक है, तो इन तीनों में से जब भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर दिस हमें यहाँ पे क्या करना होगा, दिस इज डन बाय मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट. डेसिमल जिस भी बेस सिस्टम में हम उसकी हर एक डिजिट को हम क्या करेंगे, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और ऐड कराएंगे. हम इसको कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज, मैंने बोला था एनी बेस टू डेसिमल. ठीक है, तो बाइनरी पहला हम लेके चलें, बाइनरी टू डेसिमल. तो बाइनरी में जैसे मेरे पास नंबर है 1011.11, बाइनरी था, मुझे कन्वर्ट करना था डेसिमल में. तो मैंने क्या बताया, जब भी किसी बेस से डेसिमल में जाना है, हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वेट्स का मल्टीप्लाई कराएंगे. ठीक है, तो बाइनरी में जो वेट्स होंगे हमारे इन डिजिट्स के वो 2 की पावर्स में होते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से. तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का जो वेट होता है वो होता है 2 to the power 0. सिमिलरली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से एक लेफ्ट पोजीशन पे अगर हम जाएं तो उस केस में हमारा वेट होगा 2 to the power 1, उसके बाद 2 to the power 2. ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे हम लेफ्ट के साइड जाते जाएंगे तो 2 की पावर्स बढ़ती जाएंगी. बट अगर हमारे पास क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट भी है, ठीक है, जहाँ पर डेसिमल भी लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो उस पॉइंट के बाद हमारे वेट्स कहाँ पे किस तरह से मूव होंगे, -1 फिर -2, राइट. तो मेरा क्वेश्चन क्या था, 1011 इन बाइनरी. तो हमने जो LSP का 1 था उसके लिए मैंने क्या लिखा, वेट लिख लिया 2 to the power 0 से उसको मल्टीप्लाई कराया, प्लस किया. LSP के लेफ्ट साइड में जो 1 था उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, नेक्स्ट वेट जो होगा उसका वेट है 2 to the power 1. सिमिलरली थर्ड बिट हमारी है 0, उसका वेट है 2 to the power 2, प्लस जो MSP है वो है मेरी 1 और उसका वेट है 2 to the power 3. ठीक है, प्लस करेंगे. अब हमारा हम फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करें तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या आ जाएगा हमारा 1 into, अब हमारे वेट्स कैसे स्टार्ट होंगे,
टू टू दी पावर माइनस वन, ठीक है, तो 1 इंटू टू टू दी पावर माइनस वन प्लस जो राइट मोस्ट वन दिख रहा है हमारा, है ना, पॉइंट के बाद राइट मोस्ट वन जो है उसका बेस नेगेटिव में बढ़ेगा, ठीक है, तो प्लस 1 इंटू टू टू दी पावर माइनस टू। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लें तो कंप्लीट आंसर मिल जाएगा मुझे 11.75 डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे हम जो छोटा सा 10 लिख रहे हैं ना, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का हम बेस लिखते हैं। थर्ड नेक्स्ट कन्वर्जन इज ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन सिस्टम कन्वर्जन। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें वेट्स का मल्टीप्लाई कराना है और ऐड कराना है, ठीक है। हर एक बिट को उसके रिस्पेक्टिव वेट के साथ मल्टीप्लाई करें और उन सबको आपस में ऐड कर दें। तो क्वेश्चन इज 143 ऑक्टल। तो इसके वेट्स क्या हो जाएंगे, हम इसको प्लेस वैल्यू भी बोल सकते हैं, वेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 का वेट क्या हो जाएगा 8 टू द पावर 0। सिमिलरली 4 का वेट हो जाएगा 8 टू द पावर 1। 1 का वेट हो जाएगा 8 स्क्वायर, राइट। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, इनके हर एक डिजिट को उसकी वेट के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 64 प्लस 32 प्लस 3 इक्वल्स टू 99, ठीक है। अभी इसमें मैंने फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिया है, बट अगर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता तो हम क्या करते, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें, मान लो हमारे पास होता 143.2, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो 2 होता उसका वेट क्या हो जाता 8 की पावर माइनस 1। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब यहाँ पे भी हमारे वेट्स क्या हो जाएंगे, 5 का वेट क्या हो जाएगा 16 टू दी पावर 0। सिमिलरली ई का वेट क्या हो जाएगा 16 टू दी पावर 1, ठीक है। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा, फ्रैक्शनल वाला पार्ट था पॉइंट D4, तो डी का वेट क्या हो जाएगा 16 टू दी पावर माइनस 1 और 4 का हो जाएगा 16 टू द पावर माइनस 2, राइट। तो 5 इंटू 16 टू दी पावर 0 क्योंकि 1 होता है इसलिए यहाँ पे मैंने 1 ही लिया हुआ है। तो 5 इंटू 16 टू दी पावर 0 मतलब 5 ही हो जाएगा 5। अब क्योंकि ई जो है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में ई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 14 के, क्योंकि एफ क्या होता है 15 होता है, ठीक है, ई होता है 14। तो हम ई से तो ई के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हम उसको उसकी वैल्यू उसका इक्विवेलेंट लिखेंगे, दैट इज 14। तो 14 इंटू 16 टू दी पावर 1 दैट इज 224। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे जब तो हमारा कंबाइंड आंसर आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा वो क्या था, किसी भी बेस से बाइनरी हो या ऑक्टल हो या हेक्सा हो, बाइनरी ऑक्टल या हेक्सा से हमने कन्वर्ट करना सीखा डेसिमल में। तो हम वहाँ पे सिंपली ये कर रहे थे कि करस्पॉन्डिंग जो भी डिजिट्स थी उसके रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ हम मल्टीप्लाई कराते हैं और उन्हें ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी बेस से डेसिमल में आ रहे थे, बट डेसिमल टू किसी दूसरे बेस में जाना है, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी करना चाहें या डेसिमल टू ऑक्टल करना चाहें या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना चाहें, तो इस केस में हमारा कन्वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमें 2 तरह की स्टेप्स हो सकती हैं हमारी, इंटीजर पार्ट के लिए डिफरेंट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर इंटीजर पार्ट वी हैव टू यूज सक्सेसिव डिवीजन मेथड, ठीक है। फॉर कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट वी हैव टू यूज सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टेप्स फॉर सक्सेसिव डिवीजन मेथड, सक्सेसिव डिवीजन मेथड हम यूज कर रहे हैं फॉर इंटीजर पार्ट का कन्वर्जन, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी इसकी, डिवाइड द इंटीजर पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर बाय डिजायर्ड बेस। ठीक है, स्टोर द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। नाउ कंसिडर दिस क्वोशिएंट एज अ न्यू डेसिमल नंबर and repeat the step 1 until the quotient becomes 0. ठीक है, and we will note down all the remainder and we will list this all remainders in the reverse order. इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ द स्टेप्स इन सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, इंटीजर पार्ट के लिए हमने सक्सेसिव डिवीजन यूज़ किया, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस के नंबर से हम डिवाइड करते जाते हैं और क्वोशिएंट को नए डेसिमल नंबर की तरह यूज़ करते जाते हैं और रिमाइंडर नोट करते जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमें सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन मेथड को यूज़ करना है। तो फॉर दिस multiply the fractional part of the decimal number by desired base number। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आया तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम जिस भी बेस में हमें कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे डेसिमल नंबर को, हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ और हम वी विल रिकॉर्ड द इंटीजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आएगा, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा, उसको मल्टीप्लाई कराया मैंने 2 से, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीजर पार्ट हम नोट करते जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड द इंटीजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज कैरी एंड फ्रैक्शनल पार्ट एज अ न्यू फ्रैक्शनल पार्ट एंड रिपीट स्टेप 1 and 2 until fraction part of the product becomes 0 or until you have many digits as necessary for your application. Now we will read carries downwards to get the desired base number. इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 125 है मेरे पास डेसिमल में and we have to convert this 125 into the binary number। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि जब भी हम इंटीजर पार्ट का कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम डेसिमल टू एनी बेस, तो जिस भी बेस में हमें जाना है उस बेस के नंबर से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें कहाँ कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस होता है 2, सो वी विल डिवाइड 125 बाय 2। कितने टाइम्स किया, 62 टाइम्स किया, रिमाइंडर इज 1, तो हमने रिमाइंडर नोट कर लिया। अब इस 62 को फिर से हम नए डेसिमल नंबर की तरह यूज़ करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 31 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। अगेन 31 को डिवाइड किया 2 से, 15 टाइम्स, रिमाइंडर 1। 15 को डिवाइड किया 7 टाइम्स, रिमाइंडर 1। फिर डिवाइड किया 7 को, 2 3 जा 6 होता है, रिमाइंडर 1 आया। फिर 1 टाइम गया, रिमाइंडर 1 आया। फिर 1 इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, अब हम इसको नोट कैसे करेंगे, हम जाएंगे अपवर्ड। ठीक है, जो सबसे नीचे रिमाइंडर हमने नोट किया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो द कंबाइंड कंप्लीट आंसर विल बी 1 1 1 1 1 0 1। ठीक है, अभी मैंने जो ये प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था वो सेट मैंने इंटीजर पार्ट का लिया। अब नेक्स्ट में एक एग्जाम्पल और लिया है जिसमें मैंने इंटीजर पार्ट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट भी है। ठीक है, तो इसको हम दो अलग अलग तरह से, दोनों मेथड को अलग अलग पार्ट लेके हम सॉल्व करेंगे। जैसे अब क्वेश्चन है 12.0625। ठीक है, तो 12 हमारा इंटीजर पार्ट है, इसको हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, और जो 0.0625 है इसको हम
सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 12 को हम पहले सक्सेसिव डिवीजन यूज करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 6 टाइम किया, रिमाइंडर 0, अगेन 2 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स किया, रिमाइंडर 0, अगेन 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम किया, रिमाइंडर 1। अब 1 को डिवाइड करना है 2 से तो भी रिमाइंडर 1 मिलेगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होता है जब हम व्हेन वी आर डिवाइडिंग 1 बाय 2 तो रिमाइंडर 1 हमें नोट करना है। ये हमेशा स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, ये ध्यान रखिए। तो इस केस में 12 का इक्विवेलेंट बाइनरी में क्या हो गया, 1 1 0 0। ठीक है, अब जो फ्रैक्शनल पार्ट था मेरा, सॉरी, अब जो फ्रैक्शनल पार्ट था क्या था, 0.0625। अब फ्रैक्शनल पार्ट में हम मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना था इसलिए हम मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, बाइनरी के बेस से, दैट इज 2। तो 0.0625 इंटू 2 कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 0.1250। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे और जब हम फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का इंटीजर पार्ट हम एज अ कैरी नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी 0.1250 मुझे मिला, इसका इंटीजर पार्ट क्या मिला मुझे, 0, तो मैंने नोट किया 0। और जो 0.1250 था इसको अगेन मैं न्यू फ्रैक्शनल पार्ट की तरह यूज़ कर लूँगी। तो 0.1250 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट मिलेगा मुझे 0.2500। ठीक है, तो 0.25 मिला मुझे, तो इसका इंटीजर पार्ट मैंने नोट कर लिया 0, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट इज 0.25। तो 0.25 को मैंने फिर से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला 0.5। फिर से मैंने इसका इंटीजर पार्ट नोट कर लिया 0, और फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 को मल्टीप्लाई कराया फिर से 2, तो प्रोडक्ट आया 1.00। अब 1.00 है तो मेरे पास इंटीजर पार्ट क्या मिल गया मुझे, 1, तो मैंने 1 नोट कर लिया। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शनल वाले पार्ट में हम कैसे नोट करते हैं, हम डाउनवर्ड नोट करते हैं। ठीक है, तो जो भी कैरीज हमारे आए हैं उनको हम डाउनवर्ड्स नोट कर लिए। तो कंबाइंड आंसर यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या आएगा, 0.0001। ठीक है, तो कंप्लीट मेरा आंसर क्या हो गया, 1101.0001। नेक्स्ट इज डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फ्रैक्शनल वाला ही पार्ट लेके चला है। ठीक है, मुझे कन्वर्ट करना था 225 को डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना था। 225.225 दोनों सेम नंबर है, तो 225 इंटीजर वाले पार्ट को मैंने डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया। फ्रैक्शनल वाला पार्ट जो था 0.225 उसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया। तो क्या करना था, मैं डेसिमल टू ऑक्टल जाना था। मेरा डिजायर्ड बेस क्या है, ऑक्टल है, मतलब 8 है। तो हम जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय डिवाइडिंग 8। तो 225/8 किया, 28 टाइम्स किया, रिमाइंडर नोट किया 1। फिर से हमने 28 डिवाइडेड बाय 8 किया, 3 टाइम्स किया, रिमाइंडर 4। 3 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर कितना रहा, 3 रहा। ठीक है, तो इस 225 इंटीजर पार्ट का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हो गया, 341। ठीक है, सिमिलरली अगेन मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट था 0.225, तो इस 0.225 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, 1.8 प्रोडक्ट आया, इंटीजर नोट कर लिया 1। 0.800 जो था उसको नए फ्रैक्शनल पार्ट के जैसे हमने वापस से मल्टीप्लाई किया 8 के साथ,
फिर मुझे प्रोडक्ट मिला 6.4, ठीक है। तो 6 इंटीजर मैंने नोट किया। फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, क्या मिला मुझे इसमें 0.400, मल्टीप्लाई किया उस 0.4 को 8 के साथ। फिर मुझे मिला 3.2 में इंटीजर पार्ट था 3, नोट किया। 0.2 को फिर से मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, मुझे मिला 1.6। फिर से मैंने 1 इसका इंटीजर पार्ट नोट कर लिया। इसी तरह से हम 4 to 5 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल पार्ट को हम डाउनवर्ड्स नोट कर लेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट का क्या आएगा 0.16314, कंप्लीट आंसर हो जाएगा 341.16314 ऑक्टल। नेक्स्ट इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सेम क्वेश्चन लिया है जो पहले ऑक्टल के केस के लिए लिया था, वही हेक्साडेसिमल के लिए भी लिया है 225.225, ठीक है। अब क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, डिज़ायर्ड बेस हो गया 16, तो डिज़ायर्ड बेस से हमें क्या करना है, इंटीजर पार्ट को सॉल्व करने के लिए 16 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं पहले इंटीजर पार्ट सॉल्व करें, अगर हम 225 डिवाइडेड बाई 16, 14 टाइम्स किया, रिमाइंडर कितना आया 1। सिमिलरली 14 डिवाइडेड बाई 16, रिमाइंडर आया 14, ठीक है। और 14 किसके इक्विवेलेंट होता है हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल है तो हम इसको 14 नहीं लिखेंगे, हम ई लिखेंगे, ठीक है। तो इस इंटीजर पार्ट का सॉल्यूशन क्या आएगा E1। अब फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व कर लेंगे, तो 0.225 इंटू 16 आया 3.6। तो 3 क्योंकि इंटीजर पार्ट था तो हमने नोट कर लिया, ठीक है। प्रोडक्ट का इंटीजर पार्ट हम एज अ कैरी नोट करते जाएंगे, तो 3 नोट कर लिया। इस प्रोडक्ट का फ्रैक्शनल पार्ट क्या था 0.600, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 16 के साथ, मिला 9.6। तो 9 हमारा इस प्रोडक्ट का इंटीजर पार्ट था 9, तो 9 नोट कर लेंगे। अगेन जो 0.6 है उसको हम 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बार बार हमें 9.6 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का क्या आया 0.39, तो कंप्लीट आंसर इज E1.39। So it's all about the number system. Thank you.